ओके, हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर अनिकेत गरुड़। और हम आज लोग देखने वाले हैं, टॉपिक का नाम है HIV एड्स। सो HIV पॉजिटिव अगर व्यक्ति है तो उसको एड्स है या नहीं, मच्छर के काटने से एड्स फैलता है या नहीं, एड्स के ऊपर कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, ये सभी चीजें हम लोग जानेंगे आज के लेक्चर में। वायरस, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द वायरस, दिस इज द मेजर क्वेश्चन। Any university or pathophysiology questions are like this: give in detail pathophysiology of life cycle of the HIV virus, explain pathophysiology of HIV AIDS. These kind of questions may arise in your exam. Now let's go. What is AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired means due to damage to the immune system. uh, Acquired immunodeficiency syndrome means multiple kind of infection occurs to the patient and is called as a acquired immunodeficiency syndrome. Now HIV virus, yes, of course, human immunodeficiency virus, it spreads to main four uh, there are four kinds or four types through which this HIV virus spreads: unprotected sex, unprotected sexual intercourse. 95% transmission of this virus takes place by this method. Transmission of blood, infected blood and blood products. Nowadays, it has been reduced to much more percentage because nowadays there are so many blood banks who are taking care very well. And yes, using sharing of the syringes. Mainly, the people who takes charasafim ganja uses same syringes for each others. So through that, the HIV virus can spread. Then next is infected mother to child. Yes, अगर किसी भी माँ को HIV एड्स है तो उसके बेटे को या बेटी को एड्स होने के चांसेस होते हैं अगर वो प्रेग्नेंट है तो. So, but yes, good news is that there is a treatment called as HART, which we will be going to see in detail. So कि वो बच्चे को हम कैसे बचा सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं. So next is signs and symptoms. Signs and symptoms are fever, malaise. Malaise means uneasiness and stress in the muscles. Myalgia, same stretching and palpitation in the muscles. Rashes, headache, night sweats, sore throats यानी कि खांसी आती है बार बार. लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो थोड़े सूज जाते हैं. आर्थ्रालजिया, नजल कंजेशन, अबो ऑल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. देन अभी आप लोग कहेंगे कि सर ये सभी चीजें तो हमारे साथ होती है, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरे साथ भी होता है. फीवर, रैश, हेडेक, नाइट स्वेट्स हमेशा हम लोगों को होता है, तो इसका मतलब क्या हम सबको एड्स है क्या? नहीं, नॉट लाइक दैट. In HIV patient, in AIDS patient, especially AIDS patient, there is a compromised immune system. Now, for each and every month, repeatedly these kind of symptoms are arriving in the AIDS patient. So, ये लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इस वजह से ये symptoms आ जाते हैं. हर महीने अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको चेकिंग करनी चाहिए. Now, next, opportunistic infections क्या है भाई? What are the opportunistic infections? Like bacterial infection, Mycobacterium tuberculi, TB, Mycobacterium tuberculi, TB, fungal infections, Cryptococcus, viral diseases like cytomegalovirus virus, herpes simplex virus, Kaposis sarcoma. In fact, WHO have recommended to take the vaccination twice a year to the HIV/AIDS patients as their immune system is compromised. इम्यून सिस्टम कौन सी इम्यून सिस्टम है भाई, क्या क्या है उसमें हम लोग आगे देखने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में एलाइजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. तो एंटी HMGB1 एंटीबॉडीज होती हैं इसमें, एंड HMGB1 और एंजाइम लेवल एंटीबॉडीज के जरिए ये ट्रैक किया जाता है. और अगर वायरल पार्टिकल्स आपके बॉडी में होंगे so they will stick here and you will get the result on the ELISA. So if viral proteins are present in your blood, so this ELISA is going to be find out, and if there is a positive ELISA, that means virus is present in your body. मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि फॉल्स रिजल्ट आ जाते हैं क्योंकि अलग अलग वायरस भले ही अलग अलग हो लेकिन उनके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मैच होते हैं, जो ELISA में ये प्रॉब्लम आ सकती है. तो उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट.
तो वेस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के थ्रू वायरस के जो भी प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट किया जाता है और उनको रन किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स इट कैन बी claim that western blot only you will come to know that the you are having HIV infection or not. Now these are the diagnostic tests. Now types of HIV classification. There is HIV-1 and HIV-2. HIV-1 is more virulent, it is more deadly, it spreads very quickly and it attacks immune system very in a fast and very quick manner. But HIV-2 is little bit slow, and the good news is in India there is HIV-2 is more prevalence than other countries. Now group M, group N, group O, depending upon the structure and changes, some similar enzymatic changes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, these kind of what we can say groups has been divided. Now differences in HIV and HIV-2, I have told you already. HIV-1 contains RNA and HIV-2 contains mRNA, memory RNA, which was used to create gag protein. HIV-2 is less easily transmitted, as I have told you earlier, and the period between initial infection and illness is longer in the case of HIV-2. तो यस, ये भाई साहब है जिनकी वजह से पूरी दुनिया हैरान है. अभी तक ट्रीटमेंट मिली नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू है इसके ऊपर. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम, स्ट्रक्चर एंड जीनोम. So this is the basically HIV virus, anatomy of the HIV AIDS virus, RNA. This is a single stranded RNA and these are the enzymes. Okay, these are the enzymes, reverse transcriptase, transferases, proteases, different types of enzymes are there. Yes, structural capsid is also important. GP120, glycoprotein 120, envelope protein. These are the envelope proteins. Means we can say that these are the hands of the HIV. ओके, GP41. मैंने ऐसा क्यों कहा हैंड्स ऑफ HIV? एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि HIV वायरस काम कैसे करता है, आपके बॉडी के अंदर कैसे आता है, ये तो हमने देखा. अब हम लोग ये देखेंगे कि HIV वायरस आपके इम्यून सेल्स के अंदर जाकर कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है. GP41 एनवेलप प्रोटीन जो है वो यहाँ पर है. GP17 मैक्सिट्रिक्स प्रोटीन जो है वो यहाँ पर है. लिपिड मेम्ब्रेन का लेयर है यहाँ पर. P24 capsule protein. Why these kind of things are important? Because you are going to draw this figure in your exam. तो आपको ये समझाना है. और GP120 और GP41 क्यों important है वो हम लोग आगे आपको समझाएंगे. यस, तो वायरस मेम्ब्रेन, GP120 एंड GP41, ये जो वायरस होता है ये इसकी लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं. इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगा. तो यस, वीडियोस देखते हैं. हम लोग थोड़ा सा एक आपको ये चीज़ थोड़ी सी विचलित कर सकती है क्योंकि इसमें एक्चुअल पेशेंट्स के बारे में दिखाया गया है कि ये HIV के पेशेंट्स मरते कैसे हैं, क्या प्रॉब्लम आती है. नाइजीरिया का वीडियो है, वहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ का वीडियो है. मैंने आवाज़ म्यूट कर रखी है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या 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 होता है यहाँ पे. तो यस, ये डॉक्टर समझा रही है कि कैसे कैसे पेशेंट आते हैं यहाँ पर. बच्चे ज़्यादातर होते हैं यहाँ पे. सेक्सुअल ट्रैफिकिंग और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है. ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं वहाँ पे लोग, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑफकोर्स यूथ जो है वहाँ का वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है. तो मेनी पीपल आर डाइंग ओवर देयर. दीज आर द स्पेशल केयर हॉस्पिटल. और आप लोग देख सकते हैं कि हालत ये किस तरह की है. अब ये वीडियो दिखाने का रीजन ये है कि आपको इसका सीरियसनेस पता चले. एक पेशेंट का एक्सरे दिखा रही है डॉक्टर जो है और वो बता रही है कि उसको TB का इन्फेक्शन कैसे हुआ है. आप लोग इस एक्सरे में देख सकते हो कि यहाँ पर इसके जो लंग्स हैं वो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इन्फेक्टेड है. ओके, तो यस,
दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और हम लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। नाउ HIV वायरस, उसके लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग देखेंगे। HIV लाइफ साइकिल जो है वो हम लोग देखेंगे। तो HIV वायरस, उसके प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर जो कैप्सिड है, उसके अंदर एंजाइम और RNA है। ओके, नाउ इंटीग्रेज, प्रोटीएज, these kind of enzymes are there, so it is getting attached to CD4 cell। CD4 cell क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। GP120 जो होता है वो उसका हाथ, जैसे मैंने आपको बताया, CD4 सेल के ऊपर, ये CD4 रिसेप्टर होता है, इसके ऊपर ये जाकर अटैच कर देता है। इट इट गेट अटैच टू इट एंड देन अगेन फोल्डिंग हो जाती है GP41 की, और उस वजह से क्या होता है कि वायरस जो है वो अंदर आ जाता है। CXCR4 करके भी एक रिसेप्टर रहता है, केमोकाइन रिसेप्टर 4, CCR5 केमोकाइन रिसेप्टर 5, दीज आर द रिसेप्टर। अब ये वायरस देखिए, उसके पार्टिकल्स जो है वो आपके सेल के अंदर, CD4 सेल, इम्यून सेल के अंदर आ चुके हैं। RNA से DNA फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ओके, नाउ RNA इज गेटिंग कन्वर्टेड टू DNA। यस, now it has been converted to double stranded DNA, as in humans we are having double stranded DNA. Then this DNA is transported to nucleus of the cell and it gets integrated to the nucleus of the cell। yes, ये सेल थी जिसके अंदर जो वायरस आ गया। अब ये वायरस का जो DNA है, it has been integrated into by the help of this integrase enzyme which is present in the virus। तो अब क्या होगा, वायरस के सारे अब यहाँ पर अगर DNA है तो वायरस के सारे प्रोटीन तैयार किए जाएंगे। दैट मीन्स वायरस के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो इससे ढेर सारे वायरसेस बनेंगे, देयर विल बी सो मेनी वायरसेस एंड इट विल break your CD4 cell, it will break your immune cell and it will come out, which we are going to see। This is the protease enzyme which is cutting the proteins formed in the cell, immune cell। yes, now you can see the virus is budding and it is taking out your body cells layers। yes, ये जो वायरस है ये आपके बॉडी सेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो कवरिंग है, दिस इज द कवरिंग ऑफ योर बॉडी सेल, दिस इज कवरिंग ऑफ योर इम्यून सेल एंड द वायरस इज कमिंग आउट बाय टेकिंग दिस layer of your body cell। so that's why other immune cells are not able to find out the virus। so that is the main reason till date we are suffering from HIV। we have uh, we have stopped HIV, we cannot control him or we cannot prevent the infection। we can prevent the infection actually, but we cannot kill that virus। so how we can kill that virus, some scientists लोगों ने बहुत अच्छा कुछ दिमाग लगाया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। एक ये भी वीडियो देख लेते हैं कि HIV रिप्लिकेशन का वीडियो है, टारगेटिंग HIV रिप्लिकेशन। यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ये डिटेल में वीडियो लेने की क्या जरूरत थी भाई। तो GP120 और GP41 जो वायरस के हाथ, ये हाथ GP120 है और ये है GP41। तो ये आइडेंटिफाई करता है, मैं अगर अंधा हूँ समझो, अगर वायरस अंधा है और वायरस को चेयर पे बैठना है, आपके CD4 सेल के ऊपर अगर बैठना है वायरस को, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, तो अंधा आदमी हाथ लगाकर आइडेंटिफाई करता है। इन सिमिलर मैनर CD4 सेल के ऊपर आपके CCR5 केमोकाइन CXCR4 और CD4 प्लस रिसेप्टर्स रहते हैं, उस रिसेप्टर को वायरस जाकर चेक करता है और फिर अब ये वायरस का जो GP41 है वो अटैच होगा यहाँ पर CD4 प्लस CCR5 रिसेप्टर और CXCR4 रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच होगा। अटैच होने के बाद क्या होगा, वायरस को पता चल जाएगा कि यस, फिर ये कैप्सिड एनवलप जो है वो अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा और वायरस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, अंदर का जितना भी मटेरियल है वायरस का, वो सब कुछ सेल के अंदर चला जाएगा।
it will get transmitted into your CD4 cell, that means your immune cell. Here you can clearly see how virus is getting transmitted into your immune cell, CD4 cell. CD4 क्या है भाई? CD4 रिसेप्टर है, CCR5 भी एक रिसेप्टर है और CXCR4 भी एक रिसेप्टर है जो आपके इम्यून सेल्स के ऊपर होता है। इम्यून सेल्स कौन सी होती हैं वो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं, तो डोंट वरी। तो ये वायरस के अंदर के जो भी पार्ट्स हैं वो बॉडी पार्ट फिर से अंदर आ गए हैं और फिर से वही होगा। तो अगली स्लाइड में हम लोग ये देखते हैं, एक फिर से हम लोग देखेंगे कि ये वायरस है आपके अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फिर ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट के जरिए अगर ये अंदर आ जाता है तो वायरस पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। अब अगर आपको इनको रोकना है तो ऐसे ड्रग आपको बनाने चाहिए जो CCR5 रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड हो, CXCR4 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो, CD4 रिसेप्टर के ऊपर जाकर अगर बाइंड होते हैं तो वायरस उन रिसेप्टर्स को ढूंढ नहीं पाएगा और अंदर नहीं आ पाएगा, वायरस विल नॉट एंट्री विल बी इनहिबिटेड। अब नाउ व्हाट द RNA, this is the RNA which is getting converted to DNA. Reverse transcriptase, with the help of the reverse transcriptase enzyme, it is happening. Now non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, if these kind of drugs are required, which will prevent this reverse transcriptase to format RNA into DNA. न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो भी वही काम करते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हमें मालूम है कि ATCG DNA बनाने के काम में आते हैं, ठीक है, दीज आर द बेस पेयर्स। अगर हम लोग फ्लैंकिंग एंड वाले फॉल्टी बेस पेयर्स अगर देंगे तो ऑफकोर्स वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बन नहीं पाएगा, DNA राइटली नहीं बन पाएगा, यानी कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में कोई भी DNA वायरस का जा नहीं पाएगा और उस वजह से फिर वायरस के कोई भी पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हो पाए। सिंपल लॉजिक। फिर यहाँ पर ट्रांसफरेज करके एक एंजाइम रहता है जो ट्रांसफर करता है और इंटीग्रेट करके एक एंजाइम रहता है जो इंटीग्रेट करता है वायरस के जो भी DNA बन चुका है यहाँ पर, वो इंटीग्रेट करता है इस अपने नॉर्मल ह्यूमन के DNA में इंटीग्रेट करेगा और यहाँ पर वायरस के प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये वायरस के प्रोटीन्स प्रोटीएज की मदद से कट होकर, प्रोटीएज इज अ लाइक यू कैन से cutting enzyme which cuts the viral protein into small parts and then virus get bird और सारे वायरस इस होस्ट सेल को ब्रेक कर कर आगे बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मेजर सेल्स इन्वॉल्व इन HIV इन्फेक्शन। HIV CD4 सेल्स जो होते हैं वो है CD4 मॉलिक्यूल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि CD4 रिसेप्टर है यहाँ पर। T हेल्पर सेल जो मेमोरी और अदर सेल्स को एक्टिवेट करने में काम आते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस, इनका काम होता है जो बैक्टीरिया और वायरसेस है उनको एंगल्फ कर कर किल करना। डेंड्राइटिक सेल सेम काम है इनका भी, लोकलाइज तरीके से ये काम करते हैं। नाउ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या है, दीज काइंड ऑफ ड्रग्स आर प्रेजेंट फॉर द ट्रीटमेंट। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एग्जांपल्स आर अबाकावीर, डिडानोसिन, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. These are the efavirenz, nevirapine. Protease inhibitor, protease क्या था भाई? Protease it was a cutting enzyme. So atazanavir, darunavir, fosmanogepant, एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स। एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स का हमने देखा था कि भाई CXCR4 रिसेप्टर, CCR5 रिसेप्टर और CD4 रिसेप्टर को अगर हम लोग ब्लॉक करते हैं तो एंट्री रुक जाएगी। एंटीवर्टाइड मीरावायरॉक, ये मारावायरॉक जो है वो स्पेशली इसका अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू है और ये CCR5 रिसेप्टर ब्लॉकर है। देन इंटीग्रेज इनहिबिटर राल्टेग्राविर, एल्बिटेग्राविर, मैचुरेशन इनहिबिटर, वायरस के जो कोई प्रोटीन पार्टिकल्स हैं तो उन्हें वो मैच्योर ही नहीं होने देता है। तो दीज ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स शुड बी यूज्ड। अगर एक भी वायरस जिंदा है इट विल अगेन हिट योर इम्यून सिस्टम CD4 सेल एंड अगेन वायरस का सारे प्रोटीन्स और ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए HIV को किल करना बड़ा मुश्किल है। अदर पॉस्करनेट सिनर्जिस्टिक एनहांसर क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे।
यस, करंट टारगेट्स फॉर HIV। करंट टारगेट्स में मैंने आपको समझाया था कि HIV वायरस है, तो HIV वायरस इसका GP41 आप देख सकते हो बॉडी पार्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 भी है, और बाय यूजिंग दिस बॉडी पार्ट इट आइडेंटिफाइज द इम्यून होस्ट सेल। इम्यून होस्ट सेल मतलब CD4 सेल, फ्यूजन डोमेन CCR5 है यहाँ पर, देन CD4 रिसेप्टर है यहाँ पर, CXCR4 रिसेप्टर है। कोई अंधा आदमी अगर चेयर पर बैठना चाहेगा तो चेयर के दोनों बाजू में देखेगा, चेयर पर बैठने की जगह है कि नहीं देखेगा, चेयर के पीछे जो हम लोग बैक को टच करते हैं वो रेस्टिंग के लिए है कि नहीं देखेगा, और उससे उसको समझ में आ जाता है कि ये चेयर है, और फिर वायरस अपना काम शुरू कर देता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, वायरस लाइक अ घोस्ट, इट कम्स टू योर बॉडी एंड डू हिज वर्क। आपने सिनेमा देखा होगा 1920, तो उसमें क्या होता है कि भूत वो हीरोइन के अंदर आ जाता है, और फिर वो हीरोइन लोगों के खून करती फिरती है। तो वायरस भी उसी प्रकार से काम करता है। वायरस आपके बॉडी में आएगा, आपके सेल्स में जाएगा, अपने खुद के वायरस प्रोड्यूस करेगा, उस सेल को मार देगा। एंट्री एंड फ्यूजन इनिबिटर CD4 सेल होती है। GP41 और GP120 को अगर हम लोग ब्लॉक करने वाले प्रोटीन्स और या फिर अगर ड्रग्स तैयार करते हैं तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब एल्फ्यूवर्टाइड करके जो ड्रग है वो क्या करता है, P20 यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है। ओके, बाइंड होने के बाद क्या होता है कि वो जो कैप्सिड है GP41 एंड GP120 ये मैच ही नहीं होता, और वो वायरस इट वो स्टिक ही रह जाता है वहां पर, और वहीं पर वो वायरस मर जाता है, अंदर नहीं आ पाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एंट्री एंड फ्यूजन इनिबिटर। ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी दिस लूजेस द GP41 फ्यूजन इज प्रिवेंटेड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि GP120 का फ्यूजन नहीं वो रोक रहा है। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड बेस प्लस शुगर, जिससे हम लोगों का DNA और RNA तैयार होता है। ओके, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या है, बेस पेयर होती है जिसमें शुगर, राइबोज और डीऑक्सी भी हो सकता है उसमें। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड होता है। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, थाइमिडिन ATCG, T फॉर थाइमिडिन। थाइमिडिन का स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है जिडोवुडिन के साथ। यहाँ पर OH जो ग्रुप है उसको हटाकर हम लोगों ने यहाँ पे ट्राइमाइन ग्रुप लगा दिया है। ओके, एजिन अजाइन ग्रुप लगा दिया है, सो दैट्स व्हाई जिडोवुडिन नाम रखा है इसका। अब क्या होता है, ये OH को H अगर चला जाता है तो दूसरा बेस पेयर ATC आकर यहाँ पर लग जाता है। तो अगर यहाँ पर ये फ्लैंकिंग एंड में यहाँ पर अगर अजाइड ग्रुप होगा तो वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता है, और अगला बेस पेयर ही नहीं लगता है। अगला बेस पेयर नहीं लगेगा मतलब क्या होगा, अगर आपका जिडोवुडिन T के जगह थाइमिडिन के अगर बजाय आपका जिडोवुडिन अगर यहाँ पर आकर लगता है तो इसका मतलब आगे चेन फॉर्म ही नहीं होगी। आगे चेन फॉर्म नहीं होगी, इसका मतलब आपका DNA रिप्लिकेट ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड एनालॉग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। कन्वर्जन स्टेप्स अलाउज टेनोफोविर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय FDA फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV, स्टिल इसका यूज में चल रहा है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। अब देखिए भाई साहब, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर जो होता है तो ये एंजाइम को डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है बाय अदर मीन्स। ये जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स थे, ये कैसे काम करते थे, चेन रिएक्शन को ब्लॉक करेंगे। अब ये जो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर थे, हाउ डज दे वर्क, दिस इज द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड this substrate or this non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor binds this enzyme allosterically, मतलब अलग ही साइड पर जाकर ये उसको बाइंड कर देते हैं और उसको डीनेचुरेट कर देते हैं। इससे क्या होगा, एंजाइम ही नहीं रहेगा तो DNA ही नहीं बनेगा। DNA RNA से DNA ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, आगे वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। तो वायरस आपके ब्लड में तो है, आपके CD4 सेल के अंदर तो आ जाएगा, लेकिन उसका RNA से DNA कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो यस, इंटीग्रेज इनिबिटर्स, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेज यानी कि क्या, कि वायरल DNA को आपके होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट करना। इफ यू ब्लॉक दिस एंजाइम
Then the mechanism of action of this drug is that this if this is the enzyme which is integrating the viral DNA into host DNA. So if we block this enzyme, it will again, we can say that we will prevent the viral transmission or viral budding. Okay. Now example is raltegravir, and a special note is that कुरकुमिन फ्रॉम कुरकुमा लोंगा, हमारा हल्दी जो है उसमें भी जो कुरकुमिन पाया जाता है वो भी एक इंटीग्रेज इनहिबिटर पाया गया है. नाउ नेक्स्ट इज टर्मरिक, एल्बिटेग्राविर. देन प्रोटीएज इनहिबिटर्स. प्रोटीएज का क्या काम होता है, जो वायरस के जो भी बॉडी पार्टिकल्स हैं वो कट करता है और वायरस के शेप में उनको डाल देता है. सो प्रोटीएज इनहिबिटर्स विल इनहिबिट द प्रोटीएज एंजाइम. So saquinavir, amprinavir, fosfamprinavir, these are the drugs which will inhibit this protease enzyme. Okay, so protease enzyme को ये ऐसे करेंगे. तो HIV vaccine, nowadays there is a research going on for HIV vaccination on which GP120 and GP41, these are the major targets. इनके खिलाफ अगर हम लोग कुछ एंटीबॉडीज बना पाए तो ये क्या करेंगी कि वायरस का जो ये मेन बॉडी पार्ट है उसको ही खा जाएंगी, तो वो अंदर एंट्री नहीं आ पाएगी. देयर आर वीक स्टिमुलेंट्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. अगेन ये वायरस का साइज बहुत ही छोटा होता है, इट इज वेरी टाइनी शेप. एंड मैंने आपको बताया भी था पहले, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट वायरस इटसेल्फ इज टेकिंग सेलुलर लेयर ऑफ योर ओन बॉडी. सो दैट्स वाई उसको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है. अगर मेरे खुद के मेरे जैसा अगर 10-15 लोग आपके सामने दिखने लग जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और वायरस कौन है, राइट? तो यस, टेक अ कप ऑफ टी एंड गेट फ्री फ्रॉम HIV. Yes, epigallocatechin and theoflavin, these are the polyphenols and these are also active against HIV. Griffithsin, it is a isolated protein from the red algae Griffithsia. ये भी एक एंटी HIV करके अच्छा टारगेट है. आप लोग जो एमफार्म के स्टूडेंट्स अगर ये सुन रहे हैं तो वो भी इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं. Porphyrin inhibitors are the combination of the drugs which are used. Then synergistic enhancer, if you drink grapefruit juice with ritonavir and all these anti-HIV drugs, the absorption get drastically increased and they are acting fantastically. Now drugs under clinical trial, entry inhibitors, attachment inhibitors, mainly chemokine receptor antagonists are there. CCR5 antagonist जो receptors हमने देखे, CXCR4 antagonist जो है वो, integrase inhibitors जो है वो. यहाँ पर अब ये आप देख रहे होंगे कि नाम जो है वो AK602 है, ऐसा थोड़ी नाम रहता है. Yes, of course, these are the clinical under clinical trial molecules. The reference for this is your Goodman-Gilman. थैंक यू वेरी मच. नाउ हम लोगों ने ये चीजें देखी, HIV के बारे में बहुत कुछ समझा, राइट? अब HIV स्प्रेड कैसे होता है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या क्या होती हैं, हाउ टू डायग्नोज, टाइप्स ऑफ HIV हमने देखे, फिर वायरस का स्ट्रक्चर देखा, फिर वायरस के अंदर का जो मेन जो अंदर का स्ट्रक्चर है GP120, GP41. देन हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखा वायरस का. फिर जो वायरस जो है वो कौन से सेल्स को डैमेज करता है वो हमने देखा. ओके, नाउ मैक्रोफेजेस के बारे में हमने देखा. फिर ट्रीटमेंट ऑफ HIV में हमने टारगेट देखे, फ्यूजन एंट्री इनहिबिटर्स देखे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम रहता है उसके इनहिबिटर्स देखे. फिर जो अदर साइट्स से जाकर अटैच करते हैं वो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स देखे हमने. तो दीज काइंड ऑफ ऑल ड्रग्स वी हैव सीन. प्रोटीएज इनहिबिटर्स हम लोगों ने देखे. फिर HIV वैक्सीनेशन का हमने देखा कि कैसे रिसर्च एंड रेगुलेशन चल रहे हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस.